Hello friends, what's good you all? This is CM Mohit and I again welcome all of you to Elite Professional Academy and this is the session of CA Intercompany Law and we are at chapter number 2, that is the incorporation of the company. We are actually at the end of this chapter and we have left with only two sections from this chapter, that is section number 18 and section number 19. We will try to cover up these two sections in this particular lecture. So let's get start with those sections. Friends, section number 18 deals with that conversion of the companies already registered. Means what? If the already registered company, that is if the company is private limited, okay, and if the company is public limited, okay. Now these want to convert itself into another form of company, that is private company want to convert itself into public company and public company wants to convert itself into the private company. Can they do so? Okay, so to get the answer, just start with the section number 18. So answer has been given in section number 18. So we'll read the section. According to section number 18 of the Companies Act 2013, ए कंपनी में कन्वर्ट, तो देखो ए कंपनी में कन्वर्ट यानी कि कंपनी कन्वर्ट कर सकती है. सो आंसर क्या है इसका कि कंपनी जरूर अपने आप को किसी और फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट जरूर कर सकती है. ठीक है. इन द सम अदर क्लास ऑफ द कंपनी बाय ऑल्टरिंग. अब उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, देखो रिक्वायरमेंट बताई है. पहली रिक्वायरमेंट उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी एमओए और अपने एओए को क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा. Following is the law in with respect to this conversion. Firstly, company has to convert, alter its memorandum and article. A company of any class registered under the act may convert itself of as a company of other class, that is public to private and private to complete, under this act by alteration of MOA and alteration of articles of association in the accordance with the provision of this chapter. अब आपको एमओए और एओए बदलने के लिए क्या बोला है, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14. सो मोटा मोटी बात कर ले तो इस पॉइंट में क्या बताया है कि अगर आपने आपको किसी और फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू फॉलो सेक्शन नंबर 13, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, एंड सेक्शन नंबर 14, that is alteration of articles of association. So whatever we have seen in section number 13 and section number 14, that you have to follow for converting yourself into another company. Means suppose you are a public company, so you might have drafted your MOA by having in mind the provisions applicable to the public company. So if you want to convert itself into the private company, then you have to draft again, or you have to alter your existing memorandum by having in mind the provisions applicable to any private company. So बट ऑब्वियसली बात है कि आपने अपने आप को अगर पब्लिक से प्राइवेट बनाना है तो प्राइवेट कंपनी को दिमाग में रखते हुए अपने अपने मेमोरेंडम को चेंज करना है, एंड दैट गोज विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार. आपको क्या करना है, अभी आप खुद से नहीं बोल सकते कि चलो आज से मैं प्राइवेट हूं, आप खुद से नहीं बोल सकते कि आज से मैं पब्लिक हूं. आपको उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा, किसको, आरओसी को. ठीक है. सो वेर एवर सच कन्वर्जन ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी डन, ए कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार who shall, after satisfying himself the provisions applicable for the registration of the company have been compliant with, close the former registration. What is former registration? Suppose earlier you were the private company, देन अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि आपने इस एक्ट में दिए गए सारे प्रावधान, अगर मान लो प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन रही है, सो पब्लिक कंपनी बनने के लिए जितने भी रेगुलेशंस, जितने भी रूल्स, जितने भी प्रोविजंस बताए हैं, अगर उनका फुलफिलमेंट आपने कर दिया है तो रजिस्ट्रार आपका पहले का रजिस्ट्रेशन एज ए प्राइवेट कंपनी कैंसिल कर देगा. फॉर्मर यानी कि क्या, फॉर्मर यानी कि अर्लियर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर देगा. ठीक है. सेम गोज विद द प्राइवेट टू पब्लिक, or issue a certificate of the incorporation after registering the required documents and issue the certificate of incorporation in the same manner as its first registration. Means अगर आप पब्लिक से प्राइवेट बन रहे हो, ठीक है ना, या प्राइवेट से पब्लिक बन रहे हो, अगर आपने पूरी तरीके से सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आरओसी को सबमिट कर दिए हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, तो आपका पहले वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा और आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
इशू किया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा एज इफ इट इज योर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नाउ वन क्वेश्चन इज देयर, suppose your company is earlier public company or your company is earlier private company, now you are converting into private and you are converting into public company respectively, ठीक है। Now what will happen to the debts of the company or whatever liabilities of the company that were emerges or that has been arisen when the company was in its former form of organization, that is suppose A limited was there, so A limited by the virtue of the name we will call it as a public company, ठीक है ना। Now A limited has entered into agreement with its creditors, okay, so creditors can be bank or can be any other creditor which has been arisen in due course of the operation. So with its creditor, when they have entered into contract, the creditors have entered into contract by having in their mind that that company is a public company. So if it is converting itself into the a private limited, then creditors might lose their security in the company, okay, with respect to their dues from the company. So here in this case, company law says that whatever debt, whatever liabilities that was there of any company before prior to conversion, जो भी liability, जो भी debt कंपनी के थे, जो एक कन्वर्जन के पहले कंपनी की हुआ करते थे, वो सारे के सारे डेट, सारी की सारी लायबिलिटी वैसी की वैसी रहेगी इवन आफ्टर द कन्वर्जन, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, सिक्योरिटी जैसे कि तैसे ही उनको मिलनी चाहिए, और ये बात लास्ट में भी है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखो फोर्थ पॉइंट, नो इफेक्ट ऑन द डेट लायबिलिटीज एक्सेट्रा इनकर्ड बिफोर द कन्वर्जन। तो ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके ऊपर आपको सवाल इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर दिस सेक्शन shall not affect any debt or liability. So very important thing is that it shall not affect any debt or liability, obligation or the contracts incurred or entered into by or on behalf of the company before the conversion, and such debts, liabilities, obligation and contract may be enforced in the same manner as if registration had not been done. What is registration had not been done? Registration had not been done इन न्यू फॉर्म, ओके, नए फॉर्म में वो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, उसी तरीके से उसके ऊपर क्या किया जाएगा, क्लेम किया जाएगा। यानी कि ये क्रेडिटर जो है वो ए लिमिटेड के ऊपर पब्लिक कंपनी करके ही दावा ठोकेंगे, इवन इफ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। व्हाई? बिकॉज दैट डेट हैज बीन अराइजन व्हेन द कंपनी वाज इन अ फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। हाँ, आफ्टर कन्वर्जन अगर वही क्रेडिटर कोई और डेट बनाता है उस कंपनी के साथ, तो वो प्राइवेट लिमिटेड करके ही उस कंपनी के ऊपर दावा ठोक सकता है। क्लियर है? पक्का झेप्या? तो ये था सेक्शन नंबर 18। अब आपके मॉड्यूल में इतनी ही सारी जानकारी दी है सेक्शन नंबर 18 के बारे में, लेकिन देखो अगर मान लो मैं प्रोसीजरल पार्ट को देखता हूँ, सेक्शन नंबर 18 में कन्वर्जन करना है तो कुछ इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो चार्ट पे आप ध्यान देंगे, लिखना बाद में, लिखने का टाइम मैं आपको जरूर दूंगा। देखो मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे, दैट कंपनी हैज बीन कन्वर्टिंग इट फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, ठीक है ना, एंड कंपनी इज कन्वर्टिंग इनटू पब्लिक, converting from public to private, ठीक है। So what are the requirement that the company has to follow, ठीक है। So these are the requirement। So public to private and private to public। पहले देखते हैं प्राइवेट टू पब्लिक। सो प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी बन रही है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले, कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक बनाने के लिए, कन्वर्ट करने का जो ख्याली पुलाव दिमाग में आने आएगा, वो किसके आएगा? वो जरूर आएगा किसके, बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सो बोर्ड मीटिंग होगी और उस बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। किस चीज के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाएगा? पहले एक तो हम लोग कंपनी का नाम बदलेंगे, चेंज ऑफ नेम, ये सुनो, बिकॉज अभी कंपनी क्या बन रही है, प्राइवेट से पब्लिक। तो अभी मान लो ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम था, तो अब बन जाएगा ए लिमिटेड, ठीक है ना। अब इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरी चीज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास करेंगे, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ AOA, ओके, चेंज ऑफ AOA, अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू व्हाट, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, ठीक है। थर्ड चीज वो क्या करेंगे, अभी उन्होंने ये तो सोच लिया कि कंपनी का नाम चेंज करना है और कंपनी का AOA चेंज करना है, ठीक है। अब ये जो उन्होंने सोचा है, इसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता तो जरूर है, तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने के लिए वो क्या करेंगे,
they will fix the date for जनरल मीटिंग. ओके, दे विल फिक्स द डेट फॉर द जनरल मीटिंग. सो जनरल मीटिंग कब बुलाएंगे, ये डेट वो क्या करेंगे, फिक्स करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट थिंग अभी बोर्ड मीटिंग में ये तो बातें फिक्स होगी, कंपनी का नाम चेंज करना है, कंपनी का एओई चेंज करना है. अब इसके लिए जनरल मीटिंग में मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो जनरल मीटिंग कौन से दिन पे लेनी है वो भी वही डिसाइड करेंगे. अब सेकेंड थिंग क्या होगी, बोलो जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी. सो दे विल कन्वे द जनरल मीटिंग ऑफ अ मेंबर्स. सो मेंबर्स को बुलाया जाएगा. ठीक है. और आपको तो पता ही है. ठीक है. तो एज पर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 दैट इज चेंजिंग द एमओए, वी हैव टू पास व्हाट, स्पेशल रेजोल्यूशन. ओके, बिकॉज ये नेम को चेंज करने का है. तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे. क्या डिलीट करेंगे, डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड. ओके, डिलीटिंग द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम कंपनीज नेम. उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे. सेकंड थिंग हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 14 के तहत हम लोग एओए को अल्टर करेंगे. और एओए को अल्टर करने के लिए हमको लगता है जनरल मीटिंग का अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है. तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा. और तीसरी बात जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, बोलो, वी विल फाइल दिस जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. कौन से, ये भी स्पेशल रेजोल्यूशन और ये भी स्पेशल रेजोल्यूशन विद द आरओसी. तो आरओसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, ये फाइल जरूर करेंगे. ठीक है. और थर्ड थिंग हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आरओसी के साथ हम लोग फाइल कर दिए, फाइलिंग विथ आरओसी. ठीक है. और आरओसी के साथ फाइल करने के बाद आरओसी क्या करेगा, आरओसी हमको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा इन फॉर्म नंबर INC 11. ठीक है ना. विद इन 30 डेज ये जरूर लिखेंगे. 30 दिन के अंदर हम लोग आरओसी के पास ये सारी बातें सबमिट कर लेंगे. तो वापस एक बार मैं बताता हूं कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग द प्राइवेट लिमिटेड इनटू पब्लिक लिमिटेड. सो प्राइवेट कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी मीटिंग बुला के कंपनी का क्या नाम चेंज करना है और कंपनी का एओए चेंज करने के जो भी प्रोविजंस है उसका एक बेसिक पार्ट बनाएंगे उनके मीटिंग में. बिकॉज डिसाइड तो वही करेंगे. उसके बाद उस चीज के लिए उनको जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत है. तो इसके लिए वो जनरल मीटिंग की डेट फिक्स करेंगे और जनरल मीटिंग उस दिन पे बुलाएंगे. और मीटिंग में ये सारी बातें मेंबर्स के सामने रख देंगे. तो मेंबर क्या करेंगे, एक तो 13 सेक्शन के अंदर एमओए के नेम क्लॉज को बदलने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और एओए को बदलने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन अगेन पास करेंगे. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उन रेजोल्यूशन को लेके आरओसी के पास जाएंगे और जो भी फॉर्म्स रहेंगे वो आरओसी के पास सबमिट कर देंगे 30 दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड आरओसी क्या करेगा, अगर उसको सही लगता है सारी बातें तो वो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है. तो ये बात होगी कन्वर्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इनटू पब्लिक. अगर मान लो कंपनी पब्लिक से प्राइवेट बन रही है तो क्या होगा. ठीक है. अब ना हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट बना रहे हैं. ठीक है ना, पब्लिक से प्राइवेट बना रहे हैं. थोड़ा सा लाइन मारता हूं इधर. ठीक है. चलो, सभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक से प्राइवेट बना रहे हैं. तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर है ये भी देख लेते हैं. नाउ जैसे कंपनी पब्लिक से प्राइवेट बन रही है तो एक बात तो जरूर याद रखना है हमने कि कंपनी के जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूर आ जाएगा. तो कंपनी के मैक्सिमम नंबर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी शुड बी 200. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये ध्यान देना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये ध्यान देना है that to ensure that number of members shall not exceed 200. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग लेके वगैरह सारी बातें फिक्स कर लेनी है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स और कौन कौन कंपनी में मेंबर्स रहेंगे और वो नंबर 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सेकेंड थिंग जो करेंगे, अगेन पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कंपनी को चेंज करना है. अब जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा किस चीज के बारे में, बोलो, अगेन पहला चेंज ऑफ नेम और दूसरा ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए. अब इन दोनों के लिए हमको क्या लगेगा, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूर लगेगा. ठीक है.
और तीसरी चीज वो क्या करेंगे, वो फिक्स करेंगे जनरल मीटिंग की डेट। यस और नो, बिकॉज इन दोनों चीजों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, उनको जनरल मीटिंग में अप्रूवल की जरूरत है। अब थर्ड थिंग वो क्या करेंगे, मीटिंग ऑफ मेंबर बुलाएंगे, जो हमने यहाँ पे भी देखा था, कन्वे अ जनरल मीटिंग, कन्वे अ जनरल मीटिंग ऑफ अ मेंबर्स। और उसमें वो क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट थिंग वो क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 के तहत नेम को चेंज करने के लिए, नेम को चेंज करने के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और वर्ड प्राइवेट हटा के वहां पे क्या लगाएंगे, पब्लिक लगाएंगे। लेकिन इस चीज के लिए अगर आपको याद है तो हमने देखा था कि अगर कंपनी पब्लिक से प्राइवेट बन रही है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। यस और नो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक बात जरूर याद रखना, हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि अगर कंपनी पब्लिक से प्राइवेट बन रही है तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है, प्राइवेट से पब्लिक बन रही है तो नेम चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग जो हमने करेंगे, क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 14 के तहत अगेन ऑल्टरेशन ऑफ एओए का प्रस्ताव मेंबर्स के सामने रखेंगे और उसको पास करके लेंगे बाय पासिंग जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, और अगेन यहाँ पे भी अगर हमको एओए अल्टर करना है तो एओए अल्टरेशन के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल और यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन हम किसके पास फाइल करेंगे, वी विल फाइल विद द आरओसी विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज। ठीक है, एंड फिफ्थ वन, आरओसी विल इशू फ्रेश certificate of incorporation in form number INC 11। क्लियर, पक्का? तो देखो क्या क्या चेंजेस है यहाँ पे। ये वाला जो प्रोसीजर है, सारे प्रोसीजर एक्चुअली सेम ही है, बस चेंजेस क्या है देखो, पब्लिक से प्राइवेट बनना है तो मैं चेंजेस को हाईलाइट करता हूँ। पहला तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इंश्योर करेंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी के 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेम चेंज करने के लिए प्राइवेट से पब्लिक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है, और एओए अल्टर करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। बाकी सारी बातें जो है वो सेम ही है। ओके, चलो सो एक काम करेंगे, सेक्शन नंबर 18 लिखेंगे। सेक्शन नंबर 18 में जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं उसको ऑनलाइन तो आपने किया रहेगा टेक्स्ट में, और नोटबुक में आप क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 18 डाल के ये प्रोसीजर वहां पे लिख देंगे। ओके, चलो सो बिट फास्ट। नहीं दिख रहा तो मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ठीक है ना, एक एक एक, एक उसके नीचे लिखना।
यस, आपका लिख के हो गया रहेगा। तो नीचे और एक चार्ट मैं बना के दे रहा हूँ कि हमने चैप्टर नंबर 2 में कौन-कौन से कंपनी के कन्वर्जन देख लिए। सेक्शन नंबर 18 में तो हमने रेगुलर कन्वर्जन देखा है, लेकिन इसके पहले भी हमने बहुत सारे सेक्शंस में कन्वर्जन देखा हुआ है। तो उसका एक चार्ट बनाते हैं कि आपको एक बर्ड्स आई व्यू आ जाएगा कि कौन-कौन से कन्वर्जन हमने चैप्टर नंबर 2 में देख लिए, ठीक है? सो पहला कन्वर्जन जो हमने देखा वो था मैंडेटरी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी, ठीक है ना? ओपीसी का कन्वर्जन हमने देखा था मैंडेटरी इनटू एनी अदर कंपनी, वो देखा था हमें सेक्शन नंबर 3 में। ये सुनो, कुछ याद है तो सेक्शन नंबर 3 में हमने देखा था। उसके बाद दूसरा कन्वर्जन देखा था हमने वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी, वो देखा था हमने अगेन सेक्शन नंबर 3 में, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था सेक्शन थर्ड में कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर कंपनी वो देखा था हमने सेक्शन नंबर 8 में, ठीक है? उसके बाद फोर्थ हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ ए लिमिटेड कंपनी इनटू सेक्शन 8 कंपनी, वो भी देखा था हमने सेक्शन नंबर 8 में। हाँ, इसके साथ रूल्स भी है, लेकिन रूल्स को मैं लिखवा के नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना? उसके बाद हमने देखा था, अभी देखा हमने कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, वो हमने देखा सेक्शन नंबर 18 रेड विथ सेक्शन नंबर 13 प्लस सेक्शन नंबर 40, ओके? तो इस प्रकार से कन्वर्जन हमने चैप्टर नंबर 2 में देख लिए हैं, ठीक है? तो आप जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो ये सारे कन्वर्जन आप थोड़े से देख के जाओगे, ताकि कंफ्यूज ना हो कि कन्वर्जन किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला एक चार्ट आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। कम ऑन। यस, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ सेक्शन नंबर 18। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 19 के साथ, ठीक है? तो सेक्शन नंबर 19, ये रहा सेक्शन नंबर 19 आपके सामने। इसके मार्जिनल नोट क्या कह रहा है? सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इनटू इट्स होल्डिंग कंपनी। वाह, जबरदस्त! मार्क इट एज अ वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है, जितने चाहे चांद तारे लगाना चाहो यहाँ पे लगा सकते हो, बिकॉज दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव और वेरी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? तो यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल आ सकता है। नाम देखो क्या है, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इनटू होल्डिंग कंपनी। नाउ वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ओके? चलो, तो बात करते हैं, मान लेते हैं एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, ओके? नाउ एच लिमिटेड और एस लिमिटेड होल्डिंग और सब्सिडरी कब कहे जाएंगे? अगर एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर्स होल्ड किए हैं, तो कितने? मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर अगर होल्ड किए हैं, तो एच लिमिटेड को बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी और एस लिमिटेड को बोला जाएगा सब्सिडरी कंपनी, ठीक है? अब टोटल वोटिंग पावर होल्ड करने के लिए इनको
एच लिमिटेड को एस लिमिटेड में कुछ तो शेयर होल्डिंग भी रखना पड़ेगा, ये सुनो, शेयर होल्डिंग भी रखना पड़ेगा, ये सुनो। तो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में क्या किया है, कुछ शेयर होल्डिंग रखा हुआ है। मान लेते हैं एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के कुछ 60% शेयर्स होल्ड किए हैं, शेयर्स होल्ड किए, ठीक है। अब शेयर होल्ड किया है मतलब कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को पैसे देके शेयर्स खरीदी किए रहेंगे, फोकट तो कोई देता है नहीं, ठीक है। अब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में शेयर होल्डिंग किया है, लेकिन क्या पॉसिबल है कि एस लिमिटेड एच लिमिटेड के शेयर्स खरीदी कर ले, शेयर्स परचेस्ड, क्या एस लिमिटेड एच लिमिटेड में शेयर खरीदी कर सकता है? चलो मान लेते हैं एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड में शेयर्स खरीदी कर लिया, तो होगा कैसे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है और यहाँ पे है एस लिमिटेड की बैलेंस शीट, ठीक है। अब दिखेगा कैसे, मान लेते हैं एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल है कुछ 1 करोड़ रुपया, ओके, और एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल है, एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल है कुछ 50 लाख रुपए, ठीक है। अब एच लिमिटेड के असेट में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड शेयर्स, ठीक है ना। मान लेते हैं 50 लाख के 50 लाख शेयर एच लिमिटेड ने खरीदी किए हैं, 50 लाख, होल्ली ओन सब्सिडरी है। सो एच लिमिटेड की होल्ली ओन सब्सिडरी है, यानी कि एस लिमिटेड एच लिमिटेड की होल्ली ओन सब्सिडरी है, तो उन्होंने 50 लाख के 50 लाख शेयर्स खरीदी कर लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड के कुछ शेयर्स खरीदी किए हैं, मान ले 10 लाख के शेयर्स खरीदी किए हैं, तो एस लिमिटेड के बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, इन्वेस्टमेंट इन एच लिमिटेड शेयर्स, मान लेते हैं 10 लाख, ठीक है, ओके। अब हुआ क्या है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में जब इन्वेस्टमेंट किया है 50 लाख का, तो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को 50 लाख रुपए दिए हैं, दिए नहीं दिए, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक में कितने आए रहेंगे, 50 लाख आए रहेंगे, और इस 50 लाख में से 10 लाख निकाल के, मतलब अब बचे कितने, 40 लाख, ये किसने किसको दिया, एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को दिया, ठीक है। सो ये जो 1 करोड़ का शेयर्स है एच लिमिटेड का, जो 1 करोड़ का दिख रहा है, वो 1 करोड़ का ना होते हुए एक्चुअली में कितना है, एक्चुअली में कितना है, 90 लाख का है। वाई 90 लाख का, वाई, बिकॉज एच लिमिटेड के ही 10 लाख रुपए जो एस लिमिटेड में थे, वो एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को वापस कर दिए, समझ आ रही बात। और जब एच लिमिटेड की बैलेंस शीट कोई थर्ड पार्टी देख रहा है, तो उसको क्या समझ रहा है कि एच लिमिटेड का 1 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, लेकिन देखा जाए तो उसके पास 1 करोड़ का नहीं, 90 लाख का ही शेयर कैपिटल है। वाई, बिकॉज 10 लाख रुपए जो 1 करोड़ में से एस लिमिटेड को दिए थे 50 लाख, उसमें से 10 लाख रुपए उसको वापस मिल चुके हैं, ये सुनो। तो यहाँ पे उसके कैश एंड बैंक में 10 लाख रुपए किससे आए हुए हैं, जो कि एस लिमिटेड से आए हुए हैं, जो शेयर कैपिटल से रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे 90 लाख है, तो क्रेडिटर्स को गलत इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एच लिमिटेड के पास 1 करोड़ के शेयर्स है, और इसी चीज को रोकने के लिए कंपनी एक्ट ये कहता है कि सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इनटू द होल्डिंग कंपनी, यस और नो, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इनटू द होल्डिंग कंपनी, ओके। तो क्या ये ऐसा हो सकता है, जी नहीं हो सकता, एस लिमिटेड एच लिमिटेड में शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता। अरे जिन्होंने पैसे दिया है उनका ही पैसे का इस्तेमाल करके आप अपने होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्लियर है। चलो पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। As per section number 19 of the Companies Act 2013, no company shall either by itself or through its nominees hold any shares into holding company, ठीक है ना। कोई भी कंपनी खुद से या फिर अपने नॉमिनी से किसी भी शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती जो अपनी होल्डिंग कंपनी है, एंड नो होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी भी किसी भी प्रकार से अलॉट और ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकती टू एनी ऑफ इट सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी को भी बोला है कि देखो सब्सिडरी कंपनी, तुमने अपने होल्डिंग कंपनी शेयर्स में होल्ड नहीं करने का, और होल्डिंग कंपनी को भी बोला है कि आप किसी प्रकार से अपने किसी भी सब्सिडरी कंपनी को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हो तो वो अलॉटमेंट और ट्रांसफर क्या कहा जाएगा, वॉइड करार दिया जाएगा, ठीक है ना, वो वॉइड हो जाएगा।
क्लियर है पक्का? तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, दैट सब्सिडरी कंपनी कैनॉट होल्ड शेयर्स इनटू होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी है, इसके क्या एक्सेप्शन मतलब कि अभी होल्डिंग कंपनी में सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर सकती है, कैसे, ठीक है। देखो एक्सेप्शन नंबर 1 उन्होंने क्या बताया है, एक्सेप्शन नंबर वो ये बताते हैं कि अगर मान लेते हैं, चलो यहाँ पे है एच लिमिटेड, ठीक है, और यहाँ पे है एस लिमिटेड, ठीक है। अब तक ये होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड के 10% शेयर्स खरीदी किए हैं, शेयर्स परचेस्ड, ठीक है। ये हुआ पहली बार। तो पहले क्या हुआ, एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड के 10% शेयर्स खरीदी कर लिए। अब तक ये होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, लेकिन एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड कर सकता है क्या, जी हाँ जरूर कर सकता है, कोई माइकल और उसको नहीं रोक सकता। अब एच लिमिटेड ने क्या किया, सेकेंडली एच लिमिटेड ने क्या किया, एस लिमिटेड में 60% शेयर्स खरीदी कर लिए, कितने, 60% शेयर्स खरीदी कर लिए, किसके, एच लिमिटेड ने क्या किया, एस लिमिटेड के 60% शेयर्स खरीदी कर लिए, परचेस्ड। ये होगी दूसरी बात, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग डेट पे हुआ था, मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 में एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड में होल्डिंग रखा, और फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या किया, एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड में शेयर्स खरीदी कर लिए। अब बाय द वर्च्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एच लिमिटेड बिकेम द होल्डिंग कंपनी ऑफ एस लिमिटेड, और एस लिमिटेड उसकी क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी बन गई। तो सवाल ये पैदा होता है, व्हाट विल हैपन टू दिस शेयर्स, 10% शेयर्स का क्या होगा। तो यहाँ पे कंपनी एक्ट बोलता है कि अगर आपने होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बनने से पहले कुछ शेयर्स होल्ड करके रखा हो, तो वो शेयर्स आप वैसे के वैसे होल्ड करके रख सकते हो। मतलब यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्डिंग रखा है, लेकिन ये सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का रिलेशन बनने से पहले होल्डिंग रखा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन बोला है, थर्ड वाला एक्सेप्शन देखो यहाँ पे भी लिखा है, where the subsidiary company is the shareholder even before it become a subsidiary company of the holding company। तो हमारे एग्जांपल में एस लिमिटेड ने होल्डिंग रखा है बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी कंपनी। तो एस लिमिटेड हेल्ड द शेयर बिफोर बिकमिंग द सब्सिडरी कंपनी, तो ये 10% का जो शेयर होल्डिंग है वो चल सकता है, इट इज वैलिड। ओके क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शंस। अब देखते हैं यहाँ पे पहला एक्सेप्शन, where the subsidiary company hold the shares as the legal representative of a deceased member of the holding company। क्या बोला है, where subsidiary company holds the share as the legal representative of a deceased member of the holding company means what। देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, मान लेते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स, ये है कंपनी टाटा मोटर्स, ठीक है। अब टाटा मोटर्स में रतन टाटा क्या है, बोलो, रतन टाटा शेयर होल्डर है, रतन टाटा क्या शेयर होल्डर है, और रतन टाटा जी के पास टाटा मोटर्स के कुछ 100 शेयर्स है, इज होल्डिंग द 100 शेयर्स, ठीक है। अब रतन टाटा जी ने इन शेयर 100 शेयर्स होल्डर 100 शेयर्स के लिए, ठीक है ना, नॉमिनी अपॉइंट किया है। नॉमिनी तो होना होगा ही कि उनके डेथ के बाद किसको ये शेयर्स मिलेंगे। तो ये नॉमिनी कोई और नहीं है, ये नॉमिनी है, मान लेते हैं टाटा स्टील, या फिर मान लेते हैं चलो रिलायंस, फॉर द सेक ऑफ रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड। तो नॉमिनी कौन है, रिलायंस लिमिटेड, क्या हो सकता है, यस। तो रतन टाटा जी के गुजरने के बाद ये शेयर्स किसको जाएंगे, रिलायंस लिमिटेड को जाएंगे। किसके शेयर्स, टाटा मोटर्स के शेयर्स। और हुआ यूं कि रिलायंस लिमिटेड ने टाटा मोटर्स के 60% शेयर्स खरीद लिए, शेयर्स परचेस्ड, शेयर्स परचेस। अब मुझको एक बात बताएंगे,
कि रिलायंस लिमिटेड क्या है, बोलो, सॉरी ऐसा नहीं होगा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। टाटा मोटर्स ने रिलायंस लिमिटेड के 60% शेयर्स खरीदी कर लिए, 60% शेयर्स खरीदी कर लिए, परचेस्ड। तो टाटा मोटर्स बन गई होल्डिंग कंपनी और रिलायंस लिमिटेड बन गई सब्सिडरी कंपनी, ये सुनो। लेकिन रिलायंस लिमिटेड शेयर होल्डर है ऑफ ए टाटा मोटर्स फॉर द 100 शेयर्स, फॉर द 100 शेयर्स, यस और नो। 100 शेयर्स के लिए शेयर होल्डर है या नहीं है? लेकिन वो 100 शेयर्स उन्होंने होल्ड किया है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज मेंबर। सो टाटा मोटर्स के जो डिसीज मेंबर है जिनका नाम है रतन टाटा, जो गुजर चुके हैं, उनके शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे? रिलायंस लिमिटेड के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। और रिलायंस लिमिटेड क्या बन जाएगी? शेयर होल्डर बन जाएगी इन टाटा मोटर्स, इवन इफ रिलायंस लिमिटेड क्या है बोलो? सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स की। क्लियर है? तो रिलायंस लिमिटेड क्या बन जाएगी? यहाँ पे शेयर होल्डर बन जाएगी, और सब्सिडरी कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ दिस subsidiary company is becoming the member of a holding company. Subsidiary company is holding the shares of a holding company. क्लियर है? तो अगर मान लो सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के मेंबर, डिसीज मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव करके शेयर होल्डिंग रखा हो, तो उस केस में ये चीज वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो ये रहा अपना क्या बोलो, फर्स्ट A point, that is where the subsidiary company, that is Reliance Industries Limited holds the shares as the legal representative of a deceased member of a holding company टाटा मोटर्स। ठीक है ना, और डिसीज मेंबर रतन टाटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इस केस में ये होल्डिंग चलता है। ओके, नाउ सेकंड एक्सेप्शन, where the subsidiary company holds the such shares as a trustee। अब इसको थोड़ा समझते हैं। ट्रस्टी, ठीक है ना, व्हाट इज ट्रस्टी? ट्रस्टी मतलब क्या? हम लोग उसको बोलते हैं क्या, कि उसको बोलते हैं विश्वास। ये सुनो, क्या बोलते हैं? विश्वास। फिर बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, कि आई ट्रस्ट यू, तो यू आर ट्रस्टी ऑफ माइन। ओके, सपोज A is trusting B, so B will be called, A trusts B, so B will be called as a trustee for A। okay, B will be called as a trustee for A। अब यहाँ पे देखो कैसा चीज होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे है अगेन रतन टाटा, ठीक है, रतन टाटा। अब रतन टाटा, ओके, रतन टाटा जी के पास कुछ शेयर्स है, रतन टाटा जी के पास कुछ शेयर्स है, ओके, कुछ शेयर्स है, ठीक है। और उनका एक माइनर बेटा भी है, मान लेते है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि रतन टाटा जी का बेटा है, ठीक है ना, मान ले जूनियर टाटा, ये कौन है? माइनर है, ठीक है, माइनर है। अब रतन टाटा जी को लगता है कि मेरे जाने के बाद ये शेयर्स अपने जूनियर टाटा को मिलने चाहिए, लेकिन वो उतना कैपेबल नहीं है टू हैंडल ऑल दिस थिंग्स, शेयर्स वगैरह हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो रतन टाटा जी ने अपने वसीयत में क्या किया? वसीयत में ये लिखा कि जो भी बंदा है, मान लेते हैं मुकेश अंबानी जी, मुकेश भाई, मैं तुमको एज अ ट्रस्टी अपॉइंट करता हूं फॉर शेयर्स टू होल्ड इन द नेम ऑफ जूनियर टाटा, ठीक है ना। मतलब तुम इन शेयर्स को होल्ड करोगे, बट सारे बेनिफिट किसको मिलेंगे? जूनियर टाटा को मिलेंगे। सो मुकेश भाई विल बी ट्रस्टी फॉर रतन टाटा, मुकेश भाई विल वर्क एज अ ट्रस्टी फॉर रतन टाटा फॉर हिज जूनियर टाटा, फॉर हिज माइनर चाइल्ड, दैट इज जूनियर टाटा। तो उसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं ट्रस्टी रिलेशनशिप। अब हमारे एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लो कोई कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है, सब्सिडी कंपनी शेयर्स होल्ड कर रही है एज अ ट्रस्टी, शेयर्स होल्ड कर रही है एज अ ट्रस्टी, तो मुकेश भाई की जगह पे अगर मान लो मैं लिखता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रतन टाटा जी ने जिस कंपनी का शेयर्स होल्ड करके रखा है वो शेयर्स है शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स, और
अगर मान लेते हैं टाटा मोटर्स ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 60% शेयर्स खरीदी कर लिए, तो रिलायंस लिमिटेड बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी और टाटा मोटर्स बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास रतन टाटा जी के टाटा मोटर्स के कुछ शेयर्स है, मान लेते हैं 100 शेयर्स। ओके, उन 100 शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के पास एज अ ट्रस्टी करके रहेंगे फॉर रतन टाटा। कुछ आइडिया क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो मुकेश भाई की जगह पे अगर मान लो रतन टाटा जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एज अ ट्रस्टी अपॉइंट किया है to hold the 100 shares of Tata Motors for his junior Tata, but Tata Motors acquired 60% shareholding in Reliance Limited, and by that virtue, Tata Motors became a holding company and Reliance Industries became the subsidiary company of a Tata Motors. But though Reliance Industries is a subsidiary company of Tata Motors, Reliance Industries is holding the 100 shares of a Tata Motors as a trustee for the junior Tata. क्लियर है? तीनों की तीनों एक्सेप्शंस क्लियर है? तो वापस एक बार एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं। देखो, पहले उन्होंने बोला है कि सब्सिडरी कंपनी किसी प्रकार का होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन पहला एक्सेप्शन, अगर मान लेते हैं कि सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के डिसीज मेंबर के बिहाफ पे एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर्स होल्ड किए हैं ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, तो चलता है। दूसरा, वेर सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स द शेयर्स एज अ ट्रस्टी, अगर सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी के मेंबर ने ट्रस्टी करके अपॉइंट करके उस होल्डिंग कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर लिए हैं और उस सब्सिडरी कंपनी एज अ ट्रस्टी उस कंपनी में शेयर होल्ड करके रखा है, तो उसको भी हम लोग होल्डिंग को हम लोग अलाउ करते हैं। और थर्ड एक्सेप्शन बोला है कि अगर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी बनने से पहले सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड करके रखे हो, तो उस केस में ये होल्डिंग हम लोग अलाउ कर रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 19 के 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन, दैट इज होल्डिंग द शेयर्स on behalf of deceased member of a holding company as a legal representative। दूसरा, hold the share as a trustee। और तीसरा, holding the shares before the relationship of a holding and subsidiary company। so ये तीनों की तीनों एक्सेप्शंस आपको याद जरूर होने चाहिए। सवाल आते हैं, केस स्टडी टाइप सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल भी आते हैं। क्लियर है? पक्का झेप्या? चलो, अब ये जो अपना बी पार्ट है, ठीक है ना, दैट इज होल्डिंग द शेयर्स एज ए ट्रस्टी, इसका थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, डीप में डिस्कशन करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपका इधर ही खत्म हो जाता है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आपने म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना ही रहेगा। म्यूचुअल फंड्स सही है? ये सुनो, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कुछ सुना है ना, टीवी पे ऐड चलता है, टीवी वगैरह देखते हैं ना, देखते हैं लॉकडाउन में बहुत टीवी देखा रहेगा आपने। सो म्यूचुअल फंड्स के ऐड तो आपने देखे रहेंगे बहुत। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ट्रस्ट, दैट इज द ट्रस्ट या फिर कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड, यू नो हाउ द म्यूचुअल फंड वर्क्स एक्चुअली। तो म्यूचुअल फंड कैसे चलता है, देखो, मान लेते हैं एक एमआरएफ का शेयर है, एमआरएफ का शेयर मार्केट में चलता है कुछ 60,000 पे, तो 60,000 रुपयों का एक शेयर है। अब एज ए इंडिविजुअल अगर मुझको एमआरएफ का शेयर्स खरीदने की मेरी औकात नहीं है, फिर मैं उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूं, मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और लोगों के साथ मिलके उस एमआरएफ के शेयर्स को होल्ड करूं? हो सकता है। अब इसी टेक्निक पे, इसी वर्किंग पे म्यूचुअल फंड चलते हैं। कैसे चलते हैं? मान लेते एक म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड। ओके, अब इस म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे है इन्वेस्टर्स, यहाँ पे है इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, इन्वेस्टर्स 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 इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब ये इन्वेस्टर क्या करेंगे, कितने, 3 हो गए क्या, चलो 6। तो ये 6 इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, पर हेड ₹10,000 वो किसको देंगे, म्यूचुअल फंड को देंगे, दैट इज ₹60,000। ओके, और म्यूचुअल फंड क्या करेगा, एमआरएफ में इन्वेस्टमेंट करेगा, एमआरएफ के शेयर्स को लेगा।
तो उन्होंने एक शेयर एमआरएफ का ले लिया 60,000 रुपयों का, और म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स बोलते हैं उसको, म्यूचुअल फंड यूनिट्स किसको देगा, 60,000 रुपए के जितने भी यूनिट्स है वो उसके इन्वेस्टर को दे देगा, जो भी यूनिट्स वो 60,000 के बनाएंगे वो इन्वेस्टर को दे देगा। अब मार्केट में 60,000 का शेयर चलता है, ठीक है ना, 60,000 का शेयर हो गया 80,000 रुपीज का, ठीक है ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20,000, बिकॉज शेयर्स की वैल्यू बढ़ सकती है। 20,000 का जो प्रॉफिट है वो किसका है, यस ये किसका है, ये म्यूचुअल फंड को जाएगा, और म्यूचुअल फंड किसको देगा बोलो, अपने इन्वेस्टर्स को दे देगा, ठीक है। बीच में म्यूचुअल फंड कुछ कमीशन लेगा, 2% 3% जो भी कमीशन है वो कमीशन लेता है, शेयर्स मतलब इन्वेस्टमेंट यूनिट्स खरीदने के टाइम पे, यूनिट्स बेचने के टाइम पे वो कमीशन चार्ज करते हैं, लेकिन जो भी प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर को पास ऑन किया जाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं 60,000 का शेयर हो सकता है कि 40,000 का भी हो जाए, तो 20,000 का नुकसान भी है, तो 20,000 का नुकसान किसका है भाई, म्यूचुअल फंड का है क्या, नहीं, ये अगले इन्वेस्टर्स का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अगर शेयर्स की वैल्यू कम ज्यादा हो गई तो उसके ऊपर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, जो ये यूनिट्स है, ठीक है, तो इन यूनिट्स की वैल्यू कम ज्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन कि शेयर प्राइस ज्यादा है, शेयर प्राइस कम हो गया जिस शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, अपने यूनिट होल्डर से पैसे लेते हैं और वो पैसे इकट्ठा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके फ्लक्चुएशन ऑफ वैल्यू के हिसाब से अपने यूनिट होल्डर्स को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट या लॉस क्या करते हैं, पास ऑन करते रहते हैं, बीच में वो अपना कमीशन लेते रहते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड है। तो आपने क्या ट्रस्ट के हिसाब से ट्रस्ट रख के म्यूचुअल फंड को पैसा दिया रहता है, जो मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, लो इन्वेस्टमेंट रिस्क भी रहते हैं, तो ये बैलेंस रहता है, इसलिए वो म्यूचुअल फंड सही है बोलते हैं कि डायरेक्टली हम लोग मार्केट से रिस्क नहीं उठा सकते हैं, या फिर हमारे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं टू गेट द शेयर ऑफ बिग कंपनीज, तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, और म्यूचुअल फंड इन सब लोगों से, ऐसे वाले सब लोगों से पैसे उठा के म्यूचुअल फंड क्या करता है, बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, और उसका जो बेनिफिट है वो अपने यूनिट होल्डर्स को पास ऑन कर देता है, ठीक है। अब एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है ना, एचडीएफसी, आपने नाम सुना रहेगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड ओके, इंडिया का आप तक का मतलब कि सबसे बड़ा आज के डेट पे अगर कोई बड़ा म्यूचुअल फंड है तो वह है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड में क्या कर दिया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और म्यूचुअल फंड ने इनको क्या दिए, यूनिट्स दे दिए, इनको दे दिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ठीक है, किसको दिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड क्या, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड क्या करता है, बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एचडीएफसी बैंक के शेयर या फिर एचडीएफसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल फंड अलग कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी अलग कंपनी है, एचडीएफसी कंपनी अलग कंपनी है, तो क्या म्यूचुअल फंड बाकी सारी कंपनी के साथ साथ एचडीएफसी कंपनी के भी शेयर्स खरीदी कर सकता है, मान लेते हैं उन्होंने एमआरएफ के भी शेयर्स खरीद लिए हैं, ठीक है, उन्होंने सन फार्मा के भी शेयर्स खरीदे हैं, तो ऐसे करके उन्होंने डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर दी, और साथ साथ एचडीएफसी कंपनी के भी शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अब एचडीएफसी कंपनी की म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है बोला, सब्सिडरी कंपनी है, ये उसकी सब्सिडरी कंपनी है, ये इसकी होल्डिंग कंपनी है। लेकिन म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एचडीएफसी कंपनी में, वो क्या खुद के लिए कर रहा है या फिर अपने इन्वेस्टर्स के लिए कर रहा है, अपने इन्वेस्टर्स के लिए कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स का ये ट्रस्टी है, ये क्या है बोलो, ट्रस्टी है। रियल इन्वेस्टर्स कौन है बोलो, रियल इन्वेस्टर्स तो उनके म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स है, और उनके बिहाफ पे वो अपने ही होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदी कर रहा है, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी का काम है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड जो है वो एचडीएफसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है अंडर द ट्रस्टी रिलेशनशिप ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स। क्लियर है, तो कुछ इस प्रकार से ये क्या चल सकता है बोलो, ये सारी बातें चल सकती है, क्लियर है, पक्का जेपिया। तो ये कुछ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू था, कुछ आपको एग्जाम में इतना डिटेल में तो नहीं आएगा, लेकिन ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एडिशनल बातें बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है। चलो, सो ये सारी बातें जो है वो आप लिख सकते हो जरूर, ठीक है। एक बार एक काम करेंगे, यहाँ तक इन चीजों को पढ़ लो, यहाँ तक जो है इन चीजों को पढ़ लो।
ठीक है ना, बाद में लिखने का काम हम लोग करेंगे। अब तक सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, अब तक सेक्शन खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तक पहले पढ़ लो, ठीक है। चलो कम ऑन फास्ट। ढंग से पढ़ना इसको। ठीक है, अगर ये पढ़ लिया है तो आप लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों को लिखना चालू कर सकते हैं। तो पहले आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। फर्स्टली यू विल राइट डाउन दिस द मेन प्रोविजन, इसको पहले लिखेंगे। अगर नोटबुक में आप कॉपी करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। ठीक है, पॉज करके आप जरूर लिख सकते हो, तो इसको अभी पॉज करो और लिखो। फिर उसके बाद ये लिखना चाहते हो तो इसको पॉज करो और लिखो, ताकि अपना समय जो है वो बच जाएगा, बहुत सारा समय बच जाएगा अपना। तो इसको पॉज करो और लिखो आगे। फिर ये आएगी यहाँ से एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन को लिखने के टाइम पे आप एक काम कर सकते हो, जो सेकंड नंबर का एक्सेप्शन है वो पहले लिखेंगे, बिकॉज फिर वो उस हिसाब से चलेगा। तो ये सेकंड नंबर का जो है वो फर्स्ट नंबर का अपना एक्सेप्शन है, ये वाला। इसको पॉज करो और लिखो, ठीक है। फिर आएगा अपना ये सेकंड नंबर, इसको पॉज करो, लिखो। स्क्रीनशॉट निकाल के मत रखना, मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल के रखेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। स्क्रीनशॉट मत निकालना, नोटबुक में सही ढंग से उसको कॉपी करेंगे। तो ये अपना सेकंड नंबर का है, ठीक है। और फिर ये अपना थर्ड नंबर का, ठीक है, ट्रस्टी वाला। तो इसको एक बार पॉज करो, जो भी आपके सामने दिख रहा है इसको पॉज करो और लिखो। इसको पॉज करो, लिखो। उसके बाद ये म्यूचुअल फंड वाला एग्जाम्पल है, इसको भी पॉज करो और लिखो, ठीक है। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है ये, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको एडिशनल नॉलेज देके जा रहा है, ठीक है। इसको पॉज करना और इसको भी लिख देना, ओके। यस, तो पॉज करके जो जो बातें मैंने बोली थी वो सारी बातें आपने लिखनी जरूर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मार्केट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। However, the subsidiary company referred to in the preceding provisos shall have, ये जो भी preceding provisos बोले, ये provisos में जो भी subsidiary companies बोले हैं, shall have a right to vote at a meeting of a holding company only in respect of shares held as a legal representative and trustee। मतलब क्या बता रही है कि अब देखो, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्डिंग रखा हुआ है, ठीक है ना, और ये हमने अलाउ भी कर दिया, ये तीन केस में, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये सुनो, तो सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर्स है, तो सब्सिडरी कंपनी जाके होल्डिंग कंपनी के मीटिंग में वोट तो जरूर कर सकती है, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन डाला है कि ओनली इन 2 केसेस। कौन से 2 केसेस? ए एंड बी। इन दो ही केसेस में आपको क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा। सो वोटिंग राइट अवेलेबल है टू दिस वोटिंग राइट्स एंड वोटिंग राइट्स, ठीक है। इसके लिए किसी प्रकार के वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है, नो वोटिंग राइट्स इज अवेलेबल। ओके, नो, व्हाई? बिकॉज ये ऑलरेडी सब्सिडरी कंपनी बनने से पहले शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, इसलिए इनको वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं करके दिए। तो ये बात जरूर याद रखना, एग्जाम में सवाल आता है कि वोटिंग राइट किन किन चीजों के ऊपर लागू है। तो ए और बी इन दो
होल्डिंग पे आपको वोटिंग राइट मिलते हैं। वाई? बिकॉज ये किसी और के लिए शेयर होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। तो अगर जहां पे लीगल डिसीज मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बिहार पे शेयर होल्ड करके रखे हो, या फिर ट्रस्टी के केस रिलेशन में शेयर होल्ड करके रखे हो, तो वहां पे आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। लेकिन जहां पे खुद के लिए शेयर होल्ड करके रखे हैं थर्ड चीज में, तो वहां पे आपको वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। क्लियर है? पक्का? इसके लिए आपको मई 19 में एक सवाल आया था अभी, ठीक है ना, मई 19 में सवाल आया था। यस, ये रहा मई 19 का सीए इंटर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। देखो इसमें आपको सवाल आया, पहला ही क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, इसके ऊपर आया है। देखो पढ़ो इस सवाल को, ठीक है। रीड दिस क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन नंबर 1, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपको आया था, पहला ही सवाल मई 19 के पेपर में। ढंग से पढ़ना इसको। एंड ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दिस। अगर इसका आंसर आपने सही ढंग से दे दिया तो आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया है, समझ भी गया है, तो आंसर करने की कोशिश करना। 4 मार्क के हिसाब से इसका आंसर आएगा। पहले एक रफली आइडिया बनाओ कि उसका आंसर क्या हो सकता है। चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। As at 31st March 2018, the paid up share capital of S Limited is 1 crore divided into
10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ठीक है। सो 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर्स, 1 करोड़ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है। ऑफ दिस, अब ये होल्डिंग ऐसा है, 6 लाख शेयर जो है और 4 लाख शेयर जो है वो हेल्ड किए हैं एच लिमिटेड और बाकी लोगों ने। तो 6 लाख शेयर्स एच लिमिटेड ने होल्ड किए हैं, किसके? एस लिमिटेड के। और 4 लाख शेयर्स किसी और लोगों ने, किन्हीं और लोगों ने होल्ड करके रखे हुए। साइमल्टेनियसली एस लिमिटेड इज होल्डिंग 5% इक्विटी शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड। अब सब्सिडी कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने 5% होल्ड करके रखा है। पहले जो 6 लाख इक्विटी शेयर्स होल्ड किए थे उसकी वजह से एच लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी और एच लिमिटेड की सब्सिडी बन चुकी है। लेकिन एस लिमिटेड ने 5% होल्डिंग रखा है, किसमें? एच लिमिटेड में, अपनी होल्डिंग लिमिटेड में। आउट ऑफ विच 1% शेयर्स आर हेल्ड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 5% में से 1% शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड करके रखा है of a deceased member of a H limited. Okay. On the basis of the given information, examine and answer the following queries with reference to the provisions of the Companies Act 2013. तो 5% जो होल्ड करके रखा है उसमें से 1% एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव करके होल्ड करके रखा है, लेकिन बचे हुए 4% का क्या? तो ये इंप्लाइड है कि उन्होंने ये होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन बनाने से पहले ही होल्ड करके रखा हो, ठीक है। तो ये इंप्लाइड है इसमें। 5% जो सब्सिडरी ने होल्डिंग में होल्ड करके रखा है उसमें से 1% एज अ डिसीज मेंबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव करके होल्ड किया है, और 4% जो होल्डिंग है वो हम लोग ये इंप्लाइड मान के लेते हैं, ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी बनने से पहले का होल्डिंग रखा हुआ है। अब ये दिमाग में रखते हुए हम लोग नीचे वाले सवाल का आंसर करेंगे। कैन एस लिमिटेड मेक द फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी ऑफ एच लिमिटेड ड्यूरिंग 18-19? सो 2018-19 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में, क्या एस लिमिटेड और फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकती है इक्विटी शेयर्स में? तो आंसर इज बिग नो, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज अभी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन बन चुका है और एस लिमिटेड अपने से एच लिमिटेड में 18-19 में किसी प्रकार का होल्डिंग नहीं कर सकती। कैन एस लिमिटेड, सेकेंड क्वेश्चन, कैन एस लिमिटेड एक्सरसाइज द वोटिंग राइट्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एच लिमिटेड? तो एस लिमिटेड क्या एच लिमिटेड के एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग एक्सरसाइज कर सकता है? देखो, एच लिमिटेड ने 5% का होल्डिंग रखा है, उसमें से 1% एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव रखा है और बाकी के 4% इंप्लाइड है कि वो उन्होंने होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन बनने से पहले होल्ड करके रखा था। तो जाहिर सी बात है 5% में से 1% के लिए ही वो वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, 4% के लिए नहीं कर सकते। अभी हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था। कैन एच लिमिटेड अलॉट और ट्रांसफर सम ऑफ इट्स शेयर टू एस लिमिटेड? क्या एच लिमिटेड को अभी और अलॉटमेंट कर सकता है? तो जी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वॉइड हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड का आंसर नो है, और सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? 1% के लिए वोटिंग कर सकता है, लेकिन 4% के लिए होल्डिंग, 4% के लिए वो वोटिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, देखो उन्होंने आंसर किस प्रकार से दिया हुआ है, एक बार आंसर चेक करते हैं। ये रहा आंसर। The paid up share capital of S Limited is 1 crore divided into 10 lakh equity shares of 10 each. Of this, H Limited is holding 6 lakh equity shares. Hence, H Limited is a holding company of S Limited and S Limited is a subsidiary company of H Limited by the virtue of section number 287. In the instance case, as per the provision of subsection 1 of 19, no company shall either by itself or through its nominee hold the shares in its holding company. Therefore, S Limited cannot make the further investment into equity shares. As per the second proviso to section number 19, a subsidiary company shall have a right to vote at the meeting of the holding company in respect of the shares held by it is as a legal representative as or as a trustee. Therefore, S Limited can exercise the voting rights in the annual general meeting of S Limited only in respect of 1% of the share held as a legal representative of a deceased member. Section 19 also provides that no holding company shall allot or transfer its shares to the subsidiary company, and any such allotment or transfer of shares of the subsidiary company shall be void. Therefore, H Limited cannot allot or transfer the sum shares to the S Limited. ठीक है, तो जो हमने अभी डिस्कस किया था वही उसका आंसर है। अब इसका आंसर किसी और प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये केस स्टडी टाइप सवाल है। तो मैंने आपको बोला था कि आप क्या कर सकते हो, पहले प्रोविजन लिख सकते हो, ठीक है ना, प्रोविजन लिख सकते हो। यू कैन राइट द प्रोविजन, पूरा का पूरा प्रोविजन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 19 का पूरा प्रोविजन लिख सकते हो, उसके बाद उसके एक्सेप्शन लिख सकते हो,
एक्सेप्शन 1 2 3 लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके नीचे उनका वोटिंग पावर का पॉइंट लिख सकते हो, पूरा का पूरा लिख सकते हो। फिर आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख सकते हो और फिर नीचे क्या लिखेंगे, आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है ना। सो फैक्ट्स को कंक्लूजन के साथ मिला के आप कंक्लूजन लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करके वन लाइन में आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। इंस्टीट्यूट ने पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखा है, लेकिन आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप प्रोविजन, फैक्ट्स और कंक्लूजन इसी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। 4 मार्क के लिए है, उस हिसाब से उसको लिख देना, ठीक है। तो अगर आपके आंसर सही है इसके, तो आपको 4 मार्क्स जरूर मिल चुके हैं। मई 2014 में भी सवाल सेम आया हुआ था, ठीक है ना। मई 2014 में सवाल कुछ इस प्रकार से था। सवाल ये था कि एक कंपनी थी एनसन लिमिटेड, एनसन लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी कंपनी थी बबून लिमिटेड, ठीक है। अब एनसन लिमिटेड ने बबून लिमिटेड में कुछ शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। लेटर ऑन बबून लिमिटेड एनसन लिमिटेड के शेयर होल्डिंग की वजह से बबून लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई और एनसन कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन गई। तो बबून लिमिटेड ने एनसन लिमिटेड के मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड किए और इससे एनसन लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई। तो क्वेश्चन ये था कि इन शेयर्स का क्या होगा, जो एनसन ने बबून में शेयर्स होल्ड रखे थे उसका क्या होगा, क्या इनको ये शेयर सरेंडर करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये सवाल था। तो इसका आंसर है दैट नो, ये सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 19 उसके प्रोवाइजो में आपका जो थर्ड प्रोवाइजो था वो यही बता रहा है कि अगर आपका होल्डिंग सब्सिडी बनने से पहले अगर शेयर होल्डिंग है तो उसको आपको देने की जरूरत नहीं है, सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, आप वो होल्डिंग रख सकते हो प्रोवाइडेड उसके ऊपर आपको वोटिंग पावर नहीं मिलेगा। क्लियर है, पक्का। अरे झेपिया गया, एक बार डायरेक्टली भी सवाल आया था कि इन हाउ मेनी वेज होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी कैन होल्ड शेयर्स इनटू होल्डिंग कंपनी, ये भी डायरेक्ट सवाल आया था। इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में सेक्शन नंबर 19 के ऊपर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 19 में और कुछ लिखा हुआ है क्या, पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, हाउएवर द सब्सिडी कंपनी रेफर टू इन प्रीसीडिंग प्रोवाइजो वोटिंग राइट दो लिख दिया। सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं, द रेफरेंस इन द सेक्शन टू द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी which is the company limited by guarantee or unlimited company not having a shares capital shall be construed as referring to the interest of the members however be the form of the interest। ओके, तो इसको आप काट सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे एग्जांपल दिया आरपीआईपी लिमिटेड का, ठीक है ना, वो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है ना, घर पे एज होमवर्क मार्क जरूर करना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो आपका क्या बोलो, सेक्शन नंबर 19 ऑल्सो। क्लियर है, पक्का, झेपिया, एनी डाउट अबाउट इट। चलो, तो सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन 19 खत्म होने के बाद अपना ये चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है। कल के लेक्चर पे, कल के सेशन पे हम लोग चैप्टर नंबर 3 के साथ चालू करेंगे, जो है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। ओके, अब जाने से पहले और एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपने पूरे के पूरे चैप्टर की, ठीक है ना। रिवीजन मतलब सेक्शन के नाम और उसके नंबर याद करने की कोशिश करते हैं, रिवीजन हम लोग बाद में जरूर करेंगे इस चीज का। तो सेक्शन की चैप्टर का नाम था इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, इनकॉर्पोरेट कंपनी। इसमें हमने देखा कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्या क्या प्रावधान होते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के, उसके रिलेटेड क्या क्या बातें करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक इस चैप्टर के सेक्शंस थे। ओके, तो क्या क्या सेक्शंस थे एक बार देखते हैं। सेक्शन नंबर 3 था फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, सेक्शन नंबर 4 था एमओए, सेक्शन नंबर 5 था एओए, लेकिन इसके बीच में सेक्शन नंबर 3 ए भी एक हुआ करता था, दैट इज मेंबर्स सेवरल लायबिलिटी। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 था एमओए, सेक्शन नंबर 5 था एओए, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 दैट इज एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए, सेक्शन नंबर 7 था इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, सेक्शन नंबर 8 फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी दैट इज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन नंबर 9 हुआ करता था इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 10 हुआ करता था इफेक्ट्स ऑफ एमओए एओए, सेक्शन नंबर 11 ओके वो निकल चुका है। सेक्शन नंबर 12 जो था वो था अपना रजिस्टर ऑफिस, सेक्शन नंबर 13 अल्ट्रेशन ऑफ एमओए, सेक्शन नंबर 14 अल्ट्रेशन ऑफ एओए, सेक्शन नंबर 15 हुआ करता था चेंज टू बी नोटेड दैट इज अल्ट्रेशन टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, सेक्शन नंबर 16 हुआ करता था चेंज ऑफ नेम दैट इज अल्ट्रेशन ऑफ नेम, सेक्शन नंबर 17 हुआ करता था कॉपीज ऑफ एमओए एओए टू एवरी मेंबर, सेक्शन नंबर 18 कन्वर्जन ऑफ द कंपनी जो आज हमने देखा, सेक्शन नंबर 19 अगेन हमने देखा सब्सिडी कंपनी कैन नॉट शेयर्स इनटू द होल्डिंग कंपनी, सेक्शन नंबर 20 था सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन नंबर 21 था ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन नंबर 22 था एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डीड्स। तो यहाँ पे खत्म हुआ अपना चैप्टर नंबर 2। क्लियर, एनी डाउट अबाउट इट, नो। चलो, सो रुकते हैं हम लोग इधर ही, प्रॉपर रिवाइज करना इस चैप्टर को और कल के सेशन पे हम लोग चालू करेंगे
अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, सावधान रहें।